تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم بائبل مقدس کی تمام کتابوں یعنی پیدائش تا مکاشفہ تفصیلی مطالعہ پیش کر رہے ہیں، اور اگر آپ گزشتہ ایک ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ انٹرنیٹ پر ہماری ویب سائٹ biblimutaliah.com وزٹ کیجئے۔ آپ ہماری ویب سائٹ سے تمام ایک ساتھ کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور ایک لائبریری بنا سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس اینڈرائڈ فون ہے تو پلے اسٹور سے بائبل مطالعہ کے نام سے ایک اپلیکیشن ہے، آپ وہاں سے انہیں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور آپ کو تمام کتب میسر ہوں گی اور آپ مطالعے میں ہمارے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں۔ آپ یوٹیوب پر بھی ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید فیس بک پر بھی بائبلی مطالعہ کے نام سے ہمارا پیج موجود ہے۔ یہ پروگرام آپ کے لیے ہر ممکنہ ذریعے سے میسر ہے تاکہ آپ خدا کے کلام سے فیض یاب ہوں۔ یہ سنہری موقع ہے کہ ہم جانیں خدا کا کلام کیا کہتا ہے۔ اس پروگرام میں مطالعہ کرتے ہوئے ہم مکاشفہ کی کتاب پر پہنچ چکے ہیں، جو بائبل مقدس کی آخری کتاب ہے، اور ہم اس کے تیسرے باب پر ہیں، اور آج ہم 1 تا 6 آیات پر بات کریں گے، اور ہم اس پیغام پر بات کرنے والے ہیں جو سردیس کی کلیسیا کے فرشتے کو دیا گیا۔ پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے میں اسٹوڈیو میں آئے خدا کے خادم بھائی یوسف کا خیر مقدم کروں گا۔ خوش آمدید بھائی یوسف۔ بہت شکریہ بھائی۔ اور ہمارے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ بھائی یوسف، میں لفظ سردیس کے مطلب کے حوالے سے آپ کا تبصرہ سننا چاہوں گا، اور ہم یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کلیسیا دور کے کس مرحلے کی طرف اشارہ کرتی ہے؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ سردی کا مطلب بچنے والوں کا بقیہ ہے، اور تاریخی دور کے حوالے سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ یہ وہ دور ہے جو کہ لوتھر اور اس کے محترم ساتھیوں کے انقلاب لانے کے بعد آیا، اور افسوس کہ یہ جلد ہی پروٹیسٹزم کے نام کے سائے تلے ایک سیاسی تحریک میں تبدیل ہو گئی اور اپنی پاکیزگی اور اپنی روحانی گہرائی کو کھو دیا، جبکہ وہ ایک سیاسی تحریک بن کر رہ گئی۔ اور میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ افسوس بہت سی بدعتوں نے آ کر مسیحت کو گھیر لیا، اور پھر یہ اس دور کا نتیجہ تھا، اور خاص کر کے بڑی تنقید کی بربادی کا۔ صحیح۔ جبکہ کلام انسانی نظر میں آیا اور جس بات پر چاہا اس نے تنقید کرنا شروع کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ انقلاب اور پروٹیسٹنٹزم کے درمیان فرق واضح کر رہے ہیں۔ انقلاب کی بنیاد روحانی تحریک تھی، انقلاب کی بنیاد روحانی، اور پروٹیسٹزم کی بنیاد سیاسی تحریک تھی۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ میں چند آیات پڑھنے کے بعد آپ سے سوال کروں گا۔ اور سردیس کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کے، جس کے پاس خدا کی 7 روحیں ہیں اور 7 ستارے ہیں، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تو زندہ کہلاتا ہے اور ہے مردہ۔ جاگتا رہ اور ان چیزوں کو جو باقی ہیں، جو مٹنے کو تھیں، مضبوط کر، کیونکہ میں نے تیرے کسی کام کو اپنے خدا کے نزدیک پورا نہیں پایا۔ پس یاد کر کے تو نے کس طرح تعلیم پائی اور سنی تھی، اور اس پر قائم رہ اور توبہ کر، اور اگر تو جاگتا نہ رہے گا تو میں چور کی طرح آ جاؤں گا، اور تجھے ہرگز معلوم نہ ہوگا کہ کس وقت تجھ پر آ پڑوں گا۔ البتہ سردیس میں تیرے ہاں تھوڑے سے ایسے شخص ہیں جنہوں نے اپنی پوشاک آلودہ نہیں کی، وہ سفید پوشاک پہنے ہوئے میرے ساتھ سیر کریں گے، کیونکہ وہ اس لائق ہیں، جو غالب آئے اسے اسی طرح سفید پوشاک پہنائی جائے گی، اور میں اس کا نام کتاب حیات سے ہرگز نہ کاٹوں گا، بلکہ اپنے باپ اور اس کے فرشتوں کے سامنے اس کے نام کا اقرار کروں گا۔ جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ بھائی وضاحت فرمائیے کہ خداوند سردیس کی کلیسیا کے فرشتے سے اپنا تعارف کس طور پر کرواتا ہے؟ شروعات میں کہنا چاہوں گا کہ سردیس کی کلیسیا اور پھر لودوکیا کی کلیسیا، یہ دونوں ایسی کلیسیائیں ہیں
जिनकी तारीफ खुदावंद की नहीं, पर अफसोस कि उसने स्मुरना की कलीसिया को और फिलदिल्फिया की कलीसिया को इल्जाम नहीं दिया। सही। इन दोनों कलीसियाओं में बड़ा फर्क है, हालांकि इनका जिक्र आगे पीछे हुआ है, और लदुकिया और स्मुरना के दरमियान भी मैं कहूंगा कि बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि स्मुरना से वो कहता है मैं तेरी मुसीबत और गरीबी को जानता हूँ। लदुकिया से वो कहता है, तू कहता है मैं दौलतमंद हूँ और ये नहीं जानता कि तू कमबख्त है। ठीक है। खुदावंद के फरिश्ते ने सरदेस की कलीसिया से अपना तारुफ किस तरह करवाया। उसने कहा, ये लिख के जिसके पास खुदावंद की 7 रूहें हैं और 7 सितारे हैं। और हम इन अल्फाज का मुआजना 2 बाब की पहली आयत से करेंगे। लिखा है कि इफसस की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख के जो अपने दाहिने हाथ में 7 सितारे लिए हुए है और सोने के 7 चिराग दानों में फिरता है, वो ये फरमाता है। यहाँ अल्फाज तब्दील हो चुके हैं और उसने ये नहीं कहा कि वो 7 सितारे हाथ में लिए हुए है, बल्कि वो कहता है कि जिसके पास 7 सितारे हैं। पर अफसोस के जैसा मैंने कहा कि अब प्रोटेस्टेंटिज्म तहरीक खुदा पर भरोसा न रखती थी और न ही इन्हिसार करती थी, क्योंकि उसने इख्तियार वालों और रहनुमाओं का साथ दिया, जिसके बायस वो एक ऐसी तहरीक बन गई जो कि आपस में लड़ने लगी। और मैं कहूंगा कि मसीह इस बात की इजाजत नहीं देता, और इसके बावजूद उसने कहा कि जिसके हाथ में 7 सितारे हैं उसने छोड़ा नहीं, और वो कभी दीनदारों को छोड़ नहीं सकता। लेकिन वो उदास था, क्योंकि खुदा की कुव्वत पर इन्हिसार करने की बजाय वो रहनुमाओं और उमराओं की कुव्वत पर इन्हिसार करने लगा। ठीक है। कामों का जिक्र करते हुए वो कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू जिंदा कहलाता है और है मुर्दा, यानी एक ऐसी बात का दावा करना जो मौजूद ही नहीं, और दरअसल ये बात फैल गई और आज तक होती है। हकीकत को पोशीदा रख कर उसके बरक्स जाहिर करना, झूठ बोलना। इस हवाले से कुछ बताइए भाई यूसुफ। इससे हमें वो याद आता है जो 2 तीमुथियुस उसके 3 बाब में लिखा है, जबकि वो कहता है कि वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे मगर उसके असर को कबूल ना करेंगे। और हमने देखा कि सरदेस की कलीसिया में ना तो निकलियों की तालीम थी और वहां पर इजाबेल भी ना थी, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि उसकी हालत बदतर थी। पर ऐसा क्या था जो निकलियों और बलाम और इजाबेल से भी ज्यादा बुरा था? रियाकारी, जिसका सरचश्मा गरूर है। सही। खुदावंद रियाकारी और गरूर को पसंद नहीं कर सकता। लिखा है, तू जिंदा कहलाता है और है मुर्दा, यानी कि इसका मतलब है कि तेरा खुदा के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। पर अफसोस के ये वही हैं जो कलीसिया में रहनुमाई करते हैं, लेकिन वो खुदा से बहुत दूर हैं, उनका खुदा के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये वो लोग हैं जो खुदा से पैदा नहीं हुए हैं। वो बाइबल पर तनकीद करते हैं और ये बताते हैं कि किस बात पर कायम रहा जाए, किस बात को छोड़ा जाए और क्या सही है और क्या गलत है, जबकि वो खुदा से पैदा ही नहीं हुए। और तारीखी तनकीद की शुरुआत करने वाला एक फ्रेंच डॉक्टर था। उसके दोस्तों में से एक ने उसके मुतालिक ये कहा कि रूहानी तौर पर उसके तमाम मामलात सिफर हैं, और यही था तारीखी तनकीद का आगाज करने वाला, और लाखों आलमों ने उसकी पैरवी की थी। ठीक है, शुक्रिया। अभी हम एक रिपोर्ट देखेंगे, फिर मुताले में आगे बढ़ेंगे। सरदेस मुल्क के अंदरूनी हिस्से में वाक़या था और एक छोटी सतह मुर्तफा पर तामीर किया गया था, जो कि वादिये हिरमिस के ऊपर और बहुत बुलंद थी, और उसके इर्द गिर्द बारीक चट्टानी दीवारों के सिवा कुछ न था जिन पर चढ़ना नामुमकिन था। और शहर में दाखिल होने का एक ही रास्ता था, जो जनूबी सिमत से था। एक बेहद बड़ी और खतरनाक ढलवान के जरिए तहजीब और तिजारत बहुत फैली फूली थी, इस हद तक कि ये सतह मुर्तफा बेहद छोटी हो गई, और ये वजह बनी शहर के मशरकी सिमत में वाक़या पहाड़ी तक फैल जाने की, जो पहले शहर का हिस्सा ना था। जो शहर अब इलाके के एतबार से दुगना था, इसलिए यूनानी जुबान में सरदीस के नाम का मतलब है जमा। मैदान दरियाए पख्तुलस से सैराब होता था और सरदीस कालीन की सनतकार का दारुल हुकूमत बन गया, और वो अपनी दौलत के लिए मशहूर था। सरदीस पर फारसियों ने हुकूमत की, सिकंदर, अंतोखियस अकबर और आखिर में यूनानियों ने। लेकिन वो एक जल्जले से तबाह हुआ, ताइबेरियस के दारुल हुकूमत के दौरान से।
मेरा सवाल दूसरी आयत के दूसरे हिस्से से है, जहां पर लिखा है, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने खुदा के नजदीक पूरा नहीं पाया। जी भाई यूसुफ। देखें, यकीनन कामिल होने के लिहाज से किसी के अमाल कामिल नहीं, कोई भी ऐसा शख्स नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा कि उसकी मुराद यहाँ पर नीयत के कामिल होने से है, और आगे ये जाकर वाज़ेह हो जाएगा। जैसा कि उसने कहा, याद करके तूने किस तरह तालीम पाई और सुनी थी। सही। गोया वो उससे ये कहना चाहता है कि उसकी शुरुआत बड़ी अच्छी थी, वो कलाम पर कायम था। जैसा कि लूथर का लगाया हुआ नारा है कि फक्त कलाम और मुकम्मल कलाम और फक्त कलाम और मुकम्मल कलाम। तुझे क्या हुआ? बस याद कर तूने किस तरह की तालीम पाई और सुनी थी। आज मैं तेरे उन कामों को देखता हूँ जिनमें तूने खुद को खुदा के कलाम से बुलंद मुकाम दिया, और तू खुले आम तनकीद करता है, आखिर तू कौन है? तेरी नीयत कामिल नहीं है और ना ही तेरे अमाल कामिल हैं, क्योंकि खुदावंद खुदाए अजीम है और अमाल का तोलने वाला है। क्योंकि खुदा देखता है कि मैं क्या करता हूँ और क्यों करता है, इसीलिए खुदा पैमाना या मुकद्दस की शक्ल से तोलता है। उस बेवा के मुतालिक कहता है जिसने 2 दमड़ियां डाली कि उसने बाकी लोगों से ज्यादा डाला। खुदावंद तू किस पैमाने से तोलता है? नीयत के उस पैमाने से जिससे उसने वो नजर पेश की, और यहाँ उसने उन लोगों को देखा जो कि खुदा के कलाम और मुजस्सम कलाम की गुस्ताखी करने वाले थे। क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने खुदा के नजदीक पूरा नहीं पाया। बस याद कर कि तूने किस तरह की तालीम पाई और सुनी थी। याद कर कि शुरुआत में तूने किस तरह से सच्चाई को कबूल किया। बड़े शौक से तू उस पर सख्ती से कायम था, और वो तुझसे इल्तमास करता है कि उस हालत में वापस लौट आए। शुक्रिया भाई यूसुफ। मैं तीसरी आयत की तरफ दोबारा जाना चाहूंगा, जिसमें खबरदार किया गया कि अगर तू जागता ना रहेगा तो मैं चोर की तरह आ जाऊंगा और तुझे हरगिज मालूम ना होगा कि किस वक्त तुझ पर आ पड़ूंगा। यहाँ बहुत सख्त खबरदारी है। जब खुदावंद आएगा तो उसके साथ क्या करेगा? जी भाई। मैं कहूंगा कि ये आयत दूसरी आयत से जुड़ी हुई है, जबकि वो उससे कहता है कि जागता रह और उन चीजों को जो बाकी हैं और जो मिटने को थी मजबूत कर। इससे मुझे पौलुस की वो बात याद आती है जो उसने इफिसस के बुजुर्गों से कहा कि जागते रहो, और याद रखो कि मैं 3 बरस तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को समझाने से बाज ना आया। और यहाँ भी वो कहता है कि जागता रह और उन चीजों को जो बाकी हैं और जो मिटने को थीं मजबूत कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने खुदा के नजदीक पूरा नहीं पाया। बस याद करके तूने किस तरह की तालीम पाई और सुनी थी, और उस पर कायम रह और तौबा कर। और अगर तू जागता ना रहेगा और अपनी पिछली हालत में जिसे मैं देखना चाहता हूँ, तो मैं चोर की तरह आ जाऊंगा। और अफसोस के वो सरदेस की कलीसिया के फरिश्ते से इसी तौर पर बात कर रहा था जिस तौर पर वो दुनिया से करता है, क्योंकि मसीह दूल्हे के तौर पर कलीसिया के पास आ जाएगा, लेकिन दुनिया के पास वो चोर की मानिंद आ जाएगा। और मैं कहूंगा कि यही बात हमें मुकाशफा 16 में भी मिलती है। और अगर हम मुकाशफा 16 को पढ़ें तो हमें मालूम होगा कि 16वीं आयत में ये लिखा है कि देखो मैं चोर की तरह आता हूँ। मुबारक वो है जो जागता है और अपनी पोशाक की हिफाजत करता है, ताकि नंगा ना फिरे और लोग उसकी बरहानगी ना देखें। और पहले थस्सलुनीकियों के 5वें बाब में लिखा है कि जिस वक्त लोग कहते होंगे कि सलामती और अमन है, उस वक्त उन पर इस तरह नागहान हलाकत आएगी जिस तरह हामला को दर्द लगते हैं, और वो हरगिज ना बचेंगे। खुदा का दिन इस तरह आएगा जैसे चोर आता है। और लूका की अंजील के 12वें बाब में भी यही बात है। लिखा है कि अगर घर के मालिक को मालूम होता कि चोर किस घड़ी आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में नकब ना लगा देता। सो मसीह की आमद के 2 रूप होंगे। वो अपनी प्यारी कलीसिया में दूल्हे के तौर पर आएगा, और दुनिया में अफसोस के साथ कि सरदेस की कलीसिया दुनिया से मुख्तलिफ नहीं, यानी कि वो कलीसिया बिल्कुल दुनिया के ही जैसी है, बावजूद इसके कि वो जिंदा कहलाती है, लेकिन दर हकीकत वो मुर्दा है और उसके काम खुदा के हजूर कामिल नहीं है। लिखा है, देखो मैं चोर की तरह आता हूँ, और जिस तौर पर वो दुनिया में आएगा और तुझे हरगिज मालूम ना होगा कि किस वक्त तुझ पर आ पड़ेगा। और यही सच है। और इसके बावजूद कलीसिया की अदालत दुनिया के साथ न होगी जब मसीह उस रोज आएगा। खुदा उनका दिन इस तरह आने वाला है जिस तरह रात को चोर आता है, लेकिन उस रोज के मुताबिक अदालती इकदामात होंगे जिन पर वो अमल दरामद करे। मेरा मतलब है उन अदालती इकदामात की माने जिन पर वो दुनिया में अमल दरामद करेगा, यानी खुदाउन के रोजे अदालत के वक्त। सो हमें उस शख्स को याद रखना चाहिए जो दर हकीकत जिंदा तो नहीं है, लेकिन वो जिंदा कहलाता है। वो कलीसिया के उठाए जाने वालों के साथ उठाया ना जाएगा, बल्कि वो दुनिया में रह जाएगा और आफतें उस पर आ पड़ेंगी और सख्त आफात का सामना करेगा। इसलिए खुदा खबरदार करता है क्योंकि वो मोहब्बत करता है। सही। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कुछ नाम है। वो कहता है, अलबत्ता सरदीस में तेरे यहाँ थोड़े से ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी पोशाक आलूदा नहीं की। वो सफेद पोशाक पहने हुए मेरे साथ सैर करेंगे।
क्योंकि वो इस लायक हैं। थोड़े से ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पोशाक आलूदा नहीं की। इसके बारे में बताएं। 4 आखिरी कलीसियाओं जिनका हमने तस्करा किया, जो कि थवाथीरा, सरदेस और फिलदिल्फिया और लुदुकिया हैं, और ये खुदावंद की आमद तक कायम रहने वाली हैं। ये खुदावंद की आमद तक कायम रहती हैं, लेकिन दीनदारों की तादाद कम होती जाती है। और थवाथीरा में बुरी हालत के बावजूद और एजाबेल के बावजूद, जो नबियों को कत्ल करने वाली थी, वो कहता है कि वहां वो बकिया था। मगर तुम थवाथीरा के बाकी लोगों से मैं कहता हूं, लेकिन अफसोस यहाँ वो ये नहीं थोड़े कहता कि बाकी लोग, सही। बल्कि वो कहता है कि थोड़े से ऐसे हैं। और फिलदिल्फिया में सारी कलीसिया कायम रहने वाली थी, लेकिन लदुकिया में अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा, जिसका मतलब है कि ईमानदारी, इनफरादी ईमानदारी तक महदूद होगी। और मैं कहूंगा कि हम उन अयाम में जी रहे हैं जिसमें ईमानदारी इनफरादी ईमानदारी बन चुकी है। देख, मैं दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूँ। अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा। पर यहाँ पर हम एक अफसोसनाक हालत को देखते हैं, क्योंकि चंद शख्स हैं जिन्होंने अपनी पोशाक को आलूदा किया। और अगर आप पूछें कि किससे आलूदा किया, तो इसका जवाब मैं कहूंगा कि आपको याकूब के खत के पहले बाब में मिलता है। उसने कहा, हमारे खुदा और बाप के नजदीक खालिस बेऐब दीनदारी ये है कि बेवाओं और यतीमों की मुसीबत के वक्त उनकी खबर लें, उनसे मोहब्बत बांटना, क्योंकि खुदा मोहब्बत है, और अपने आप को दुनिया से बेदाग रखें, ये जरूरी है, ये जानते हुए कि खुदा रोशनी है, खुदा पाक है। और इसीलिए यहाँ चंद शख्स ऐसे हैं जिन्होंने जहां की मोहब्बत और दुनिया में घुलने मिलने के बायस अपनी पोशाक आलूदा नहीं की और इस जहां के हमशक्ल नहीं बने। और चूंकि उनकी पोशाक आलूदा नहीं है, वो सफेद पोशाक पहने हुए मेरे साथ सैर करेंगे, क्योंकि वो इस लायक हैं। वो सफेद पोशाक पहने हुए मेरे साथ सैर करेंगे, से क्या मुराद है? यकीनन दुनिया में नहीं, बल्कि आसमान पर। क्या माफ कीजिएगा, क्या सफेद पोशाक जरूरी है? जैसे कि मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोगों को सफेद कपड़े पहनने का बहुत शौक होता है, क्योंकि माना जाता है कि वो उनकी अंदरूनी हालत का अक्स है। क्या सफेद पोशाक दुनिया की अंदरूनी हालत का अक्स है? देखें भाई, यहाँ पर मैं ये कहूंगा कि जैसा कि हमने ये समझा कि मुकाशफा की किताब तशबीहात से भरी है, ठीक है, उन्होंने अपने जामे बर्रे के खून से धोकर सफेद किए हैं। देखें, पर खून जामे को सफेद नहीं करता। मगर यहाँ वो कहना चाहता है, जबकि वो लदुकिया की कलीसिया के फरिश्ते से कहता है, इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूं कि मुझसे सफेद पोशाक ले, ताकि तू उसे पहनकर नंगापन के जाहिर होने की शर्मिंदगी ना उठाए। गोया वो उससे कहना चाहता है कि अपने आप को दुनिया से बेदाग रख। और ये वही हैं जिनके बारे में कहा गया है कि वो सफेद पोशाक पहनकर मसीह के साथ सैर करेंगे। खुदावंद को फरेब नहीं दिया जा सकता। और अगर आप सफेद पोशाक पहनते हैं जबकि खुदावंद आपके दिल को देखता है, और अगर आपका दिल साफ है, तो आपकी दुआ ये होनी चाहिए कि आए खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर। और यही वो शख्स है जो एक दिन मसीह के साथ सफेद पोशाक पहनकर सैर करेगा। लेकिन सफेद कपड़ा या कुछ और पहनकर लोगों को फरेब दिया जा सकता है, लेकिन खुदा को नहीं। ठीक है, उनका जिक्र करते हुए वो कहता है क्योंकि वो इस लायक हैं। लायक होने से क्या मुराद है, जबकि हम जानते हैं कि आसमान पर जाने का ताल्लुक होने से हरगिज नहीं है। क्या वो आसमान पर जाने की बात कर रहा है या इससे हटकर कोई दूसरी बात कर रहा है? देखिए, मैं कहूंगा वो यहाँ ये कहना चाह रहा है, तुम जो बोगे वही काटोगे। सही। और अगर आपने खुद को दुनिया से बेदाग रखा है, तो जब आप वहां पहुंचेंगे तो सफेद पोशाक पहनेंगे और मसीह के साथ सैर करेंगे आसमानी शहर में, जिसकी सड़कें सोने की हैं और शीशे की मानंद शिफाफ हैं। सो जो आपने बोया है आप काटेंगे। सो अगर हम बेदिल ना होंगे तो ऐन वक्त पर काटेंगे। सो यहाँ लायक होने से मुराद इनाम के लायक होना है। ठीक है, यहाँ हम वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद मेहमानों से एक और सवाल। पांचवीं आयत में वो कहता है, जो गालिब आए उसे उसी तरह सफ़ेद पोशाक पहनाई जाएगी और मैं उसका नाम किताब हयात से हरगिज़ ना काटूंगा। कुछ लोग सोचते हैं कि इन अल्फाज से मुराद ये है कि सच्चा ईमानदार किसी न किसी मोड़ पर गिरेगा और नतीजतन खुदावंद उसके नाम को किताब हयात से काट देगा और वो हलाक हो जाएगा। एक अहम सवाल। जी भाई। पहली बात, 5वीं आयत में देखा जा सकता है कि वो 3 इनामात की बात कर रहा है। सही। यहाँ मैं कहना चाहूंगा तहरा इनाम, और इससे हमें याद आता है कि परगुमन में दोहरा इनाम था और फिर थवाथीरा में दोहरा इनाम था।
लेकिन यहाँ पर सरदेस में तेहरा इनाम है और फिलदिल्फिया में चुगना ईमान है, और सही। मैं यहाँ कहूँगा कि परगुमन का इनाम क्या है और थवाथीरा का दोहरा इनाम क्या है। यहाँ पर वो ये कहता है कि मैं कौमों पर इख्तियार और मैं उसे सुबह का सितारा दूंगा। यहाँ तेहरा इनाम है जो गालिब आए उसे इसी तरह सबसे पहले सफेद पोशाक पहनाई जाएगी कि उसने खुद को दुनिया से बेदाग रखा, और इस हवाले से हम पहले बात कर चुके हैं। दूसरी बात, मैं उसका नाम किताब हयात से हरगिज ना काट डालूंगा और मैं अपने करूंगा। बाप और उसके फरिश्तों के सामने उसके नाम का इकरार करूंगा। सवाल यह है कि क्या एक सच्चे ईमानदार का नाम किताब हयात से काटा जा सकता है? हरगिज नहीं। कलाम में ये नहीं लिखा, बल्कि लिखा है मैं उसका नाम किताब हयात से हरगिज ना काटूंगा। मैं जानता हूं ये बात वाजे नहीं है, मैं इसको वाजे करता हूं। यहां पर मैं ये कहना चाहूंगा कि हमने रूह के 7 कलीसियाओं में पैगाम को देखा कि इसमें 3 मनफी बातें सही। हैं। पहली बात, जो गालिब आए उसे दूसरी मौत से नुकसान ना पहुंचेगा। रूह ने ये पैगाम सुमुरना की कलीसिया के फरिश्ते को दिया, मतलब दूसरी मौत से ईमानदार को नुकसान ना बिल्कुल, वो पहुंचेगा। एक हकीकत बयान कर रहा है और उसकी तस्दीक कर रहा है। और एक और दूसरी बात कि फिलदिल्फिया की कलीसिया के फरिश्ते को कहा गया जो गालिब आए वो फिर कभी बाहर ना निकलेगा। क्या इसका मतलब यह है कि एक ईमानदार आसमान पर जाने के बाद बाहर निकलेगा? बिल्कुल। तो हम इस बात को किस तौर पर समझ सकते हैं? मैं इसको मुख्तलिफ तौर पर समझ सकता हूं। इसका मतलब क्या है? स्मुरना की कलीसिया के दयानतदार ईमानदार को पहली मौत से नुकसान नहीं पहुंचा, या उसमें से कुछ लोग मारे गए। लिखा है कि जान देने तक वफादार रह। आपकी मुराद जिस्मानी मौत से जिस्मानी है, मौत, रूह का जिस्म सही, से जुदा पहली होना। मौत। सही। दूसरी मौत ऐसा ना कर सकेगी। सही। सो पहली मौत से दुनिया में कुछ लोगों को नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन जब हम आसमान पर जाएंगे तो दूसरी मौत से किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा। एक और बात, फिलदिल्फिया के लोग जब जमीन पर थे तो वो जी। कई बार बाहर निकले। जी हाँ, कई बार पसाओ उसकी बाहर जिल्लत को। रहते। पसाओ उसकी जिल्लत को अपने ऊपर लिए हुए खैमागार से बाहर उसके पास सही। चलें। जब हम आसमान पर जाएंगे तो बाहर नहीं। निकलेंगे? तो जवाब है नहीं। लिखा है कि वो फिर कभी बाहर ना निकलेगा। प्यारे, तेरा बाहर निकलना बहुत हुआ, अब नहीं। सही। और यही बात हो सकता है कि सरदेस के दयानतदार ईमानदारों का नाम जमीन पर से कुछ कलीसियाओं से काट दिया गया जी। हो सकता है उन्होंने उसे सही। बिद्दत जानकर उसका उसे नाम निकाल काट दिया या डाला हटा हो, दिया। पर इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सबसे अहम इंदिराज वो है कि उसका नाम किताब हयात में लिखा गया हो। मैं उसका नाम किताब हयात से हरगिज ना काटूंगा। सो ऐसा कोई ईमानदार नहीं है जिसका नाम किताब हयात से काट डाला जाए। कलाम सही। ऐसा हमें हरगिज नहीं कहता, बल्कि ईमानदार को दूसरी मौत से नुकसान ना होगा और ईमानदार बाहर ना निकलेगा और ईमानदार का नाम किताब हयात से काटा ना जाएगा। वो कायमशुदा हकीकत की तस्दीक कर रहा है। जी, तीसरा इनाम, वो खुदा और उसके फरिश्तों के सामने उसका इकरार करेगा। मसीह कब इकरार करेगा और मसीह बाप के आगे कैसे इकरार करेगा? उसने कहा बाप के आगे ये काबिल कबूल है, लेकिन फरिश्तों के आगे इकरार करने की उसे क्या जरूरत है? भाई मैं कहूंगा यह हमें लूका के बारे में बाप की 8वीं आयत याद दिलाती है, जहां पर लिखा है कि उसने कहा मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई आदमियों के सामने इकरार करे, इब्ने आदम भी खुदा के फरिश्तों के सामने उसका इकरार करेगा। गोया वो कहना चाहता है कि एक छोटी जमात के सामने, लेकिन हमारा मसीह इकरार आसमान के सब फरिश्तों के सामने करेगा, यानी कि सबके सामने, सारे फरिश्तों के आगे। देखें यहां पर कितना बड़ा फर्क है। एक छोटी सी जमात जो महज चंद लोगों की है, लेकिन जरा सोचे कि हमारा मसीह आसमान के तमाम फरिश्तों के आगे हमारा इकरार करेगा। यहाँ उसने एक बात को शामिल किया जो सरदेस की कलीसिया को दिया गया कि ना सिर्फ वो, बल्कि यहाँ पर बहुत अहम बात यह है कि खुदा के आगे, और ये बात हैरत अंगेज है कि मसीह हमारे नाम का इकरार बाप के आगे करेगा और फिर वो हमारे नाम का इकरार आसमान के फरिश्तों के आगे करेगा। यानी कि ये बहुत हैरत अंगेज बात है। यह आसमानी जमात में लोगों की तहकीर और मुसीबत को बड़े फायदे के मुकाबले में कुछ भी नहीं, जो बाप और फरिश्तों के आगे मसीह की तरफ से कद्र और तारीफ हासिल करना है। फिर छठी आयत में वो यूं इख्तिताम करता है कि जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है, और रूहुल कुद्स आज भी बोल रहा है, और वो कान चाहता है जो उसकी सुने और कबूल करें और उस पर कायम रहें और उसकी तालीम अपने दिल में। भाई मैं कहूंगा कि इस बात को याद करने की जरूरत है कि बस याद करके तूने किस तरह की तालीम पाई और सुनी थी, और उस पर कायम रह और तौबा कर। देखे, माजी में जब हमने खुदा को जाना था तो एक जोशो जज्बा था सच्चाई पर कायम रहने का। खुदा हमें याद दिलाए ताकि हम उस हालत पर वापस लौट सकें।
शुक्रिया भाई, खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आप सबको भी बरकत दे। अजीज नाजरीन, जैसा कि हमने आज की किस्त में जाना कि इस कलीसिया की बदी या शरारत या लापरवाही वो दावा था या फिर वो ढोंग था, यानी खुद को जिंदा कहना जबकि वो मुर्दा था। और तो दावेबाजी हर जमाने में एक लानत है। जब आप दावा करते हैं कि आपका खुदा से ताल्लुक है जबकि आप तबाही का शिकार होते हैं, और ये भी दावा करते हैं कि आप एक कदावर शख्सियत है जबकि आप अंदर से बर्बाद होते हैं। और जब वो आपको जांचता है तो वो आपको बेनकाब करने के लिए नहीं जांचता, बल्कि वो आपको शिफा देने के लिए, आपको अंदर और बाहर से शिफा देने के लिए। सो आइए और सच्चाई का एतराफ़ कीजिए, अपने निकम्मेपन का एतराफ़, और उसे कहिए मैं बहुत नाटक कर चुका और बड़ा ढोंग कर लिया और बड़े ओहदे हासिल कर लिए जबकि आप उसके लायक ना थे। उसे कहें कि इन दावों से, इस नाटक से तौबा करने और खुदावंद के पास आने में आपकी मदद करे। और अगर आप दीनदारों में से एक हैं जो मौत की हालत के सबब से दुख उठा रहे हैं जिसने आपको घेर रखा है, और आप जानते हैं कि आप और चंद दूसरे नाम एक छोटा बकिया हैं, तो अजीजों, ये पैगाम आपके लिए है कि जागते रहिए और उन चीज़ों को जो बाकी हैं और जो मिटने को थी मजबूत कर। जागता रहे और अपने साथियों, दोस्तों, साथ काम करने वालों के पास जा जो जागते हैं, और जो तूने खुदावंद से सुना है वो अपने दिल में रख ले और उस पर कायम रहे जब तक खुदावंद ना आ जाए। जो खुदावंद ने हमें बख्शा वो कहा है उसके कलाम में, सो कलाम की तरफ लौटे, शरीयत और शहादत पर नजर करो। अगर वो इस कलाम के मुताबिक ना बोले तो उनके लिए सही ना होगा। सो नाजरीन, आपसे अगली किस्त में फिर मुलाकात होगी, मुकाशवा की किताब की 7 कलीसियाओं में से एक नई कलीसिया के हमरा। खुदावंद आपको बरकत दे। احنا الشعب اللي انت فديته لحياة في قداسة انت دعيته في الخدمة نعيش لك ايامنا ونشهد بفداك اللي عطيته نكرز وبروحك تسندنا نار حبك تشعل حماستنا والسما تفرح بخطيته السما تفرح بخطيته نتكلم وانت تأيدنا يا إلهنا القدوس القادر قدسنا لشخصك نقينا قوم كل ضعيف أو عاسر نور بقداستك ليالينا عايزين نحيا لك في طهارة من غير ما العالم يسبينا وتبقى حياتنا سرج ومنارة ويشوفوا الناس عملك فينا तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो